So good afternoon to all of you, and today we'll have the revision of lesson number 3, save life, donate blood. Okay, save life, donate blood. Now this is a wonderful universe. It is so vast that it is beyond our imagination, yet man with his little intelligence is trying to explore the universe and conquer it. But he soon realizes that there is still much more to know. As a result, science and technology is developing day by day. Now, this universe, okay, it's very, very wonderful. We know a lot of things in this universe. Okay, a lot of things are there in this universe to conquer. And man is very curious to know what is happening in this universe. ठीक है, हम जो इंसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हैं. उनको वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता है, वो हर एक चीज़ जानना चाहता है. और हम जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो काफ़ी बड़ा है और उसके अंदर जो कुछ है वो सब पता करना चाहता है. और इस वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है. कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे डेवलप्स. नम्रता सिंह, सिट स्ट्रेट. Yeah. So technology develops day by day. Man boasts that science can make even the impossible things possible. He has reached the outer space, multiplied the comforts of life, extended lifespan. Yet he has not been able to create life, the greatest gift of God, the Almighty. So man boasts that science can make even the impossible things possible. So the man says, he speaks a lot about it. Okay? He speaks a lot and he says that man can have lots of possible things. If there is any impossible thing, man can says that he can do it. Okay? जो भी कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ इंसान कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहता रहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ. जैसे बचपन में हम कहते रहते हैं ना कि मैं इतना लंबा कूद सकता हूँ, या मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, या मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. हकीकत में जो हमारे हक में है, जो हमारे हाथ में है, या जो हमारे ताकत के हिसाब से है, हम उसी वही काम कर सकते हैं. उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं. The food we take transforms into blood. Blood is a life-giving and life-sustaining substance. This ability is a gift of God to all human beings. Now, जो भी हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे खून में तब्दील हो जाता है, वो खून में बदल जाता है. जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे खून में बदल जाता है, हमारे खून को और बढ़ाता है. ये जो ब्लड है, ये जो खून है, वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी बनाता है. अगर हमारे शरीर में से खून निकल जाए तो क्या होगा, हम मर जाएंगे. अगर खून नहीं होगा तो हम मर जाएंगे. दैट्स द पॉइंट. सो दिस इज द व्हाट द गॉड हैज़ गिवन टू ऑल ऑफ अस. ठीक है, ऑल द ह्यूमन बीइंग हैज़ गॉट दिस ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड ब्लड. Due to the advancement of medical science, it is now possible to take the blood from one healthy person and give it to another who is in need of blood. Now, due to achievements, okay, because of ये टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में से खून निकाल के जिसको खून की ज़रूरत है उसे हम खून दे सकते हैं. मतलब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में से खून निकाल के हम दूसरे जिसको खून की आवश्यकता है उसे हम दे सकते हैं. Blood is required in hospitals for patients who are undergoing operations. It helps accident victims of burns and people suffering from serious anemia. Some newborn babies die because of blood disorders. Such babies can be saved by voluntary blood donors. So, blood हमेशा ज़रूरत होता है, ठीक है, खून की हमेशा ज़रूरत होती है. कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में. हमेशा हॉस्पिटल्स में ही खून की ज़रूरत होती है, जहाँ ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ बहुत ही भयानक
बीमारियों से जो रोगी एडमिट होते हैं अस्पताल में, उनको खून की ज़रूरत होती है। कभी कभी जो नवजात शिशु होते हैं, खून की कमी की वजह से वो लोग मर जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों के पास खून होने की वजह से उन बच्चों को भी हम बचा सकते हैं। Some people are afraid to donate blood. They must be educated on the importance of donating blood. Their unfounded fear and misunderstanding must be removed. कुछ लोग हैं जो खून देने के लिए डरते हैं, ठीक है। We should not feel frightened of donating blood, ठीक है। जो स्वस्थ है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे साल में एक बार कम से कम अपना खून दान करना चाहिए, उसे डोनेट करना चाहिए। उससे उसमें कोई हानि नहीं होगी, उस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, वो उस व्यक्ति को कुछ होगा नहीं। और इसका मेन कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि अगर मैंने खून दे दिया तो मेरे में खून कम हो जाएगा, मेरे को बीमारी पकड़ लेगी, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम थोड़ा खून देंगे तो हमारे में और खून बनता रहेगा। People do not feel weakness after donating blood. After blood donation, the donor regains the blood soon. So सीधी सी बात है कि लोग खून देने के बाद कमज़ोर नहीं हो जाते, वो खून दोबारा बन जाता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो खून किससे बनता है? हमारे खाना खाने से, हमारे भोजन से। तो जितना हम भोजन करेंगे हमारा खून उतना ही अच्छा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। Anyone between the ages of 18 and 60 years can donate a unit of blood once in 3 months. The blood donor should weigh at least 45 kg and should not suffer from any major disease. अब खून कौन दे सकता है? खून 18 साल से लेके 60 साल के बीच में, दैट मीन्स फ्रॉम 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स। कि जब आप 18 साल के हो जाओगे उसके बाद से आप हर 3 महीने में एक बार खून दे सकते हैं। कम से कम साल में एक बार तो देना ज़रूरी है, अच्छी बात है वो। और जो देता है खून, उसकी जो वज़न जो होना चाहिए वो 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द पर्सन हु इज़ डोनेटिंग द ब्लड, हिज वेट शुड नॉट बी लेस देन 45 kg एंड ही शुड नॉट हैव एनी मेजर डिजीजेस, उसको कोई ज़्यादा भयंकर बीमारी भी ना हो। The blood taken from the body is replaced by nature within 3 weeks. The nature seems to say, please donate this little amount from the extra you have. I promise to give it back to you within 21 days. So the blood taken from the body is replaced by nature within 3 weeks. ठीक है, जो खून हम निकालते हैं, जो व्यक्ति खून डोनेट करता है, उस व्यक्ति के शरीर में जो हमारी प्रकृति है वो कहती है कि मैं 3 हफ्ते में, ठीक है, 3 हफ्ते में आपको मैं वो खून लौटा दूंगी, ठीक है, विदिन 21 डेज। अगर आपने खून दिया है तो आपका खून 21 दिन में वापस आपको मिल जाएगा। कैसे? कि आप खाना खाते हैं तो उस खाने से, उस भोजन से आपका खून वापस बन जाएगा। सो यू आर अ वॉकिंग ब्लड बैंक. If a person needs blood, you can generously and without harming yourself donate it to save another life. So what happens? हम लोग क्या है? चलते फिरते ब्लड डोनेटर हैं, ठीक है। हम लोग जो हेल्दी हैं, हम लोग कभी भी कहीं भी किसी को भी खून दे सकते हैं। तो हमें वो जेनरॉसिटी दिखानी चाहिए, दूसरों पे दयालु बनना चाहिए, और जिसको भी खून की आवश्यकता होती है उस व्यक्ति को खून देना ज़रूरी, हमारा कर्तव्य बनना चाहिए। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। The color of blood of all people is red all over the world, even if the color of their skin is white, black, brown or red. This is nature's way of saying that all human beings are one and all must help each other by donating blood. Donating blood is donating life. So color of blood is what? Red color. कि सबका खून का रंग लाल है। ऐसा नहीं किसी जो अमेरिका में है उनका खून का रंग कुछ और होगा, जो अफ्रीका में है उनका खून का रंग कुछ और होगा, जो इंडिया में उसका खून का रंग कुछ और होगा। नहीं, नेचर सीधा सीधा बताता है कि हम सबका खून एक है। इसका मतलब क्या है? हम सब एक है, ठीक है। पूरी दुनिया में हम सब एक है, चाहे हमारा जो स्किन का कलर ब्लैक हो, वाइट हो, रेड हो या कोई और भी कलर हो, ब्राउन हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा खून जो है वो एक है, वो है लाल रंग।
तो हमें एक दूसरे का मदद करना चाहिए. वी शुड हेल्प ईच अदर वेन एवर इट इज नीडेड. डोनेटिंग ब्लड टू सेव अ लाइफ इज अ मॉरल ड्यूटी. Grow strong physically and mentally to fulfill this duty when you become young or adult. So donating blood to save life is a moral duty. So हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को खून दें और खून दे के सहायता करें, किसी की ज़िंदगी बनाएं. The Bible says, do to others what you would like others to do for you. So be prepared to donate blood to help others as you may want someone to donate blood to you when you are in need. So जो बाइबल में लिखा है कि आप जैसा आप अपने आप के साथ व्यवहार चाहते हैं, जैसा आप कि दूसरे लोग आपसे अच्छा व्यवहार चाहते करें, वैसा ही आप भी दूसरों के साथ किया कीजिए. That is important thing, important lesson by in the Bible, that you should behave in such a manner, what you call manner that you want others to behave with you. So प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए कि हम कम से कम साल में एक बार खून दान करें. वी शुड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर डोनेट ब्लड फॉर अ नीडी पर्सन. अंडरस्टूड द स्टोरी?